السلام علیکم ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں بلال اسلم. بولیٹن کا آغاز کریں. ناظرین, سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ. پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانیوں کو خراج تحسین. وزیر اعظم نے کہا, پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا. پاکستان نے بھارتی جارحیت کے مقابلے میں ذمہ دارانہ اور محتاط رویہ اختیار کیا. گزشتہ سال بھارت نے پاکستان پر جارحیت کی. پاکستان نے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی. مثبت جواب دینے کے بجائے دشمن نے جارحیت کا راستہ اپنایا. دشمن نے خود کو ہم سے طاقتور سمجھنے کی غلطی کی. پاکستان کا سکھایا سبق دشمن کبھی نہیں بھولے گا. عالمی سطح پر دشمن کے تمام الزامات بے نقاب ہوئے. پاکستان کی فضائی برتری اور میزائل صلاحیتوں نے دشمن کو جواب دیا. ہمیں اپنے محافظوں پر فخر ہے. ہمارے محافظ ہماری خود مختاری کے نگہبان ہیں. دہشت گردوں کے خلاف آپریشن غضب للحق پوری قوت سے جاری ہے. وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج کی مارکہ حق میں تاریخی فتح پر خراج تحسین. کشمیر اور فلسطین کے عوام سے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ. وزیر اعظم کی آمد پر فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے استقبال کیا. پاک فوج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم. پاکستان مخالف پروکسیز کا خاتمہ یقینی بنائیں گے. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا کوئٹہ گیریزن کا دورہ. کمانڈ اینڈ سٹاف میں زیر تربیت افسران سے خطاب کرتے ہوئے سعید عاصم منیر نے کہا کہ پروپیگنڈے اور پروکسیز کے ذریعے خوشحالی کا سفر روکا نہیں جا سکتا. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر منزل تک پہنچے گا. بلوچستان میں امن و استحکام انتہائی ضروری ہے. دیر پا ترقی سے عوام میں خوشحالی یقینی بنائی جا سکے گی. فیلڈ مارشل کے طلباء کے اعلیٰ تربیتی معیار تعلیم کی لگن اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف. جدید جنگی تقاضوں, ابھرتی ٹیکنالوجی اور ملٹی ڈومین آپریشن سے ہم آہنگ رہنے پر زور. امن دشمن کسی رعایت کے مستحق نہیں. حکومت پاکستان کا ملک دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا فیصلہ. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کوئٹہ میں ایپکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سمیت اعلیٰ عسکری حکام کی شرکت. وزیر اعظم کی دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر فیلڈ مارشل اور افواج کو خراج تحسین. بلوچستان کی سیکیورٹی, ترقی اور گورننس کا جائزہ. معدنی راہداری کی حفاظت کے لیے رخشان میں ایف سی کو تعینات کرنے کا حکم. وزیر اعظم نے کہا, بلوچستان میں محفوظ ماحول معدنیات منصوبوں اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ضروری ہے. پولیس اور فورسز کی جدید تربیت اور نئی ٹیکنالوجی کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اہم قرار دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے گورنر بلوچستان سمیت مختلف وفود سے ملاقاتیں بھی کی. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے شیبہ میں آپریشن. آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 22 خارج کو جہنم حاصل کیا گیا. سیکیورٹی فورسز نے خارجیوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا. ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے. خارج نے مقامی آبادی کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا. سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے باکو میں ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پویلین کا افتتاح کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مختلف سٹالز کا دورہ. مریم نواز نے سٹال ہولڈرز کے ساتھ خوشگوار گفتگو کی. پویلین پنجاب کے سٹاف کی کارکردگی کی تعریف کی. مریم نواز نے اے آئی گیجٹس کا مشاہدہ بھی کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کو مختلف پروگراموں بارے آگاہ کیا گیا. پنجاب پویلین ورلڈ اربن فورم میں توجہ کا مرکز بن چکا. آذربائیجان اور پنجاب کے درمیان جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا. مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب علی ڈار کی آذربائیجان کی انوویشن اینڈ ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ ایجنسی کی ٹیم سے ملاقات ہوئی. اے آئی پر مبنی گورننس, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور جدت کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق کیا گیا. ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں مجرم عمر حیات کو سزائے موت کا حکم. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے مجرم کو 10 سال قید اور 20 لاکھ جرمانہ بھی کیا. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے فیصلہ سنایا.
वकला की जानिब से आज हतमी दलाइल दिए गए। सना यूसुफ के वालिद और वालिदा ने फैसले के वक्त अदालत में मौजूद रहे। टिक टॉकर सना यूसुफ को 2 जून 2025 को घर में कत्ल किया गया। 3 जून को पुलिस ने कातिल को जड़ावाला से गिरफ्तार किया। मकतूल की वालिदा और फूफी कत्ल की चशमदीद गवाह हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 27 गवाह अदालत में पेश हुए। हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में 2 हफ्ते से जायद वक्त के लिए ट्रायल रुका रहा। आज मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया गया। आपको बताएं, कल मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया गया। वालिदा सना यूसुफ का अदालत से इंसाफ मिलने पर खुशी का इजहार। कहा, मुजरिम को सरेआम फांसी होनी चाहिए। हमारी लीगल टीम ने इंसाफ दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। डील ना हुई तो अमरीकी अफवाज ईरान पर दोबारा हमला कर सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। कहा, ईरान पर दोबारा हमलों से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। बहरी जहाजों पर मिसाइल लोड हो चुके थे। तमाम हथियार तैयार थे। कतर, सऊदी अरब और यूएई की दरखास्त पर हमला मौखर किया। उन रहनुमाओं का ख्याल है कि संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीका को काबिल कबूल डील मिलेगी। मुमकिना मुआहदा अमरीका और मशरिक़ वस्ता के लिए काबिल कबूल होगा। डील के तहत ईरान जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखर किया। तेहरान के पास वक्त बहुत कम है। जंग हो या मुज़ाकरात, मकसद ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकना है। मुझे लगता है हम सही लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुमकिन है ईरान को दोबारा निशाना ना बनाना पड़े। अभी यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बगैर बमबारी के मामलात हल हो जाएं तो खुशी होगी। ईरान हमसे डील की भीख मांग रहा है। ईरान 47 साल से मशरिक़ वस्ता का गुंडा बना हुआ था। ईरान अब भी जवाबी हमलों की सलाहियत रखता है। आगे बढ़े और आपको बताएं, किसी भी जाहिरियत के जवाब में ट्रंप को मजीद शर्मिंदा करेंगे। अमरीकियों को सिफारतकारी और हमारी शराइत के सामने हथियार डाला होंगे। तर्जुमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम रजाई का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका हथियार नहीं डालेगा तो उसे हमारे मिसाइलों की ताकत के आगे झुकना होगा। ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। तेहरान हर तरह के हालात के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, मुज़ाकरात का मतलब हरगिज हथियार डालना नहीं। हमारी उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं। दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। किसी भी कभी भी किसी गैर मुल्की ताकत के सामने नहीं झुकेंगे। मुल्की मुफादात और वकार का दिफा करेंगे। वकार, ताकत और कौमी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुज़ाकरात करेंगे। कानूनी हकूक से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान में कशम जजीरे पर छोटे ड्रोन्स की मौजूदगी। ईरान ने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। अस्फ़हान में भी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम अलर्ट कर दिया गया। ईरानी हुकाम ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट और तैयार है। ईरान की मसालती काउंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने अमरीका को सख्त पैगाम देते हुए कहा, अमरीका पसपाई और सरेंडर पर मजबूर होगा। ट्रंप फौजी हमले की डेडलाइन मुकर्रर करके खुद ही मनसूख कर देते हैं। अमरीकी सदर का ख्याल है कि इस तरह ईरानी कौम और हुकाम हथियार डाल देंगे। अमरीका को ईरानी कौम की ताकत का गलत अंदाजा है। ईरानी मुसल्लह अफवाज अमरीका को पसपाई और सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे। ईरान ने अमरीका और उसके इत्तेहादियों को स्ट्रेटेजिक गलती से खबरदार किया। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली का कहना था कि अमरीकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, कराची के जुडिशनल मजिस्ट्रेट जनूबी ने अनमोल पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमा अनमोल पिंकी को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया। अनमोल पिंकी को दरख्शान थाने के 5 और गुजरी के 3 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड दिया गया। गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी को प्रोटोकॉल देने के मामले पर ज़िलई SSP अली हसन को मुअत्तल किया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुअत्तली का फैसला वज़ीर दाखिला सिंध की हिदायत पर किया गया।
आईजी सिंध पुलिस जावेद आलम उर्दू ने कहा कि अनमोल और पिंकी के केस बहुत से लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। कराची चैम्बर के दौरे के मौका पर ताजिरों से गुफ्तगू करते हुए आईजी सिंध पुलिस जावेद आलम उर्दू ने कहा कि हुकूमत सिंध के ताउन से मुनशियात के खात्मे पर काम कर रहे हैं। 1000 से ज़ायद मुजरिमों को पकड़ा है। उन्होंने कहा मुनशियात इस्तेमाल करने वाले और बेचने वाले में फ़र्क है। जो मुनशियात का काम कर रहे हैं उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। टास्क फोर्स बना रहे हैं। हर शहरी का कर्ज है कि मालूमात फ्राहम करे। पिंकी केस से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए जावेद आलम उर्दू ने कहा पिंकी ज़्यादातर लाहौर में रहती थी और इस केस में कई मोतबर नाम हैं। बहुत से लोगों के नाम निकल सकते हैं। ताहम मेरी मीडिया से दरख्वास्त है कि पिंकी को ग्लैमराइज ना करें कि कहीं इस पर फिल्म बन जाए। आईजी सिंध ने मजीद कहा कि कच्चे में ऑपरेशन निजात मेहरान शुरू किया। 600 से ज़ायद डाकू या तो मारे गए या पकड़े गए या उन्होंने हथियार डाले। अब सिंध में कोई भी नो गो एरिया नहीं है, जबकि कराची में भी अमन व अमान की सूरत हाल माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर है। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं नून लीग के सदर नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफीर अली शेर की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी, मजहबी और तहजीबी रिश्ते उस्तवार हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम किए जा सकते हैं। उज़्बेकिस्तान के सफीर का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से ईरान के लिए नामज़द सफ़ीर इमरान अहमद सदीकी ने मुलाकात की। ईरान के साथ दो तरफ़ा ताउन तमाम शोबों में बढ़ाने के आज़म का आयादा किया गया। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और ईरान के सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। दो तरफ़ा ताउन को तमाम शोबों में वुसअत देने की पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का आयादा किया। इसहाक़ डार ने कहा ईरान के साथ तिजारती, अवामी रवाबित और इलाकाई ताउन के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुख्ता आज़म रखता है। करीबी राबिता कारी और बाहमी फ़हम तफ़हीम के ज़रिए दो तरफ़ा रवाबित में मुस्बत पेशरफ्त के तसलसल की अहमियत पर जोर देते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने बताया इसहाक़ डार ने इलाकाई अमन, मुकालमे और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को भी उजागर किया। वफाकी वज़ीर अहद चीमा और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदर ज़ोजियाई की मुलाकात। AIIB वफ़द का निजी शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने में भी दिलचस्पी का इजहार। मुलाकात में ज़रई शोबे में निजी सरमायाकारी और वैल्यू चेन्स मजबूत बनाने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। वफाकी वज़ीर अहद चीमा ने AIIB के ताउन से जारी 1.387 अरब डॉलर के पोर्टफोलियोज को सराहते हुए कहा कि उम्मीद है बैंक ML1, N5 फेज़ 2 और पावर सिस्टम अपग्रेडेशन को तरजीहात में शामिल करेगा। पाकिस्तान में AIIB का दफ्तर कायम करने की ज़रूरत है। रेलवे, फ्रेट और लॉजिस्टिक की जदीद कारी से मईशत मजबूत होगी। आइंदा 3 से 5 साल में नतीजा खेज मंसूबों पर तवज्जो दी जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीली मेमन ने कहा BRT मंसूबे के बहुत से इशूज रहे। डॉलर की कीमत बढ़ने से असरात मुरतब हुए। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा BRT मंसूबे की लागत बढ़ाई जाए। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कराची और हैदराबाद में यू टर्न बनाए जा रहे हैं। येलो लाइन BRT में शामिल ताज हैदर ब्रिज मुकम्मल हो चुका। कुछ मसाइल वफाकी हुकूमत की मेहरबानियों की वजह से हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट, पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। व्हाइट वॉश का खतरा। दूसरे टेस्ट मैच के चौथे रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 437 रन के हदफ के ताकुब में 7 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बना लिए। बांग्लादेश की जानिब से दिए गए 437 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पहली विकेट 27 रन पर गिरी। अब्दुल्ला फजल 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की दूसरी विकेट 41 रन पर गिरी
अज़ान अवैस 21 रन बनाकर आउट हुए। 2 विकेटें जल्द गिरने के बाद कप्तान शान मसूद और बाबर आजम ने पाकिस्तान का स्कोर 133 पर पहुंचाया, जिसके बाद बाबर आजम 47 रन बनाकर आउट हुए। नए आने वाले बैटर सऊद शकील भी ज्यादा देर विकेट पर ना रुक सके और सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान का स्कोर 162 रन पर पहुंचा तो कप्तान शान मसूद भी 71 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा भी 71 रन बनाकर चलते बने, जबकि हसन अली बगैर खाता खोले आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 75 और साजिद खान 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे नाज़रीन। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में NCG यूनिवर्सिटी ओल्ड होम कैंपस में बिजनेस प्रोजेक्ट पर तलबा के साथ मिलकर एक प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम तश्कील दिया, जिसमें तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तालीम बालगा की अहमियत के लेक्चर सेशन में हेड ऑफ यूनिवर्सिटी यूनियन के अहदेदारान के अलावा दूसरे शोबाजात के असातिज़ा ने भी शिरकत की। मुकर्रिरीन ने तालीम की अफादियत पर रोशनी डाली और इकनॉमिक्स के असूलों की रोशनी में मुल्की मईशत का भरपूर तकाबुली जायजा पेश किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि कम्यूनिटी को शऊर और तालीम के जेवर से आरास्ता करके ही मुल्क की मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है। Hi, my name is Matthew Gulliver. I'm a Business Development Manager here at Tetra Tech, and today we've been here talking about occupational health, how it can benefit businesses and what the legal responsibilities are for companies to use it. And it's been a really interesting day. Thank you. Hi, I'm Kaz Barlow and I'm a health tutor here at OLC. This has been a great opportunity for all health and business tutors and students to get together and see the hard work that the business students have put into their dissertations and posters. Well done, congratulations, and good luck for the future. This is basically, we had an event that we invited some successful entrepreneurs to share their success story, because we believe that from health and social care, our health and social care students, after they graduate, they can be not only job for someone else, they can be their own boss. They can set their own business. So this is what is our intention today, so that they got some tips, advice, how they can start their own business. It's also been wonderful to introduce them to the topic of occupational health, helping them to understand how they might be able, as graduates, to manage their future employees should they become business owners or managers in future, and also how they can establish support services so that their employees can feel better supported, feel able to work safely and perform at their best. My name is Ali Mubin. I am the head of School of Health and Education at OLC. Today, our students from Top Up, they actually completed their dissertation where they submitted the different projects. One of the most important part for the learning outcomes was they need to submit poster where we can see the future projects. So we can see almost every students, they come up with different topics and they presented with what could be this topic. What could be the plan for this project. Hi everyone, my name is Basima. I'm the Teaching, Learning and Assessment Lead at this college. Today we are holding a very special event. It's a Business Expo, where we're showcasing our level 6 business top-up students' research finding and what they have been working on. So we are really proud our students presented, and we also had some guest speakers, and it's been an enriching event for all our health and business students, and it's a proof of great teamwork here. इलाकाई मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। खानपुर महर के करीब आदिलपुर में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के इल्ज़ाम के बाद इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। दूसरी जानिब डॉक्टर आयशा ने मुतासरा खातून से इज़हार यकजहती करते हुए कहा इंसाफ की फराहमी तक आवाज़ बुलंद की जाएगी, जबकि DSP घोटकी अनवर शेख ने कहा मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाएगा। वाक़े के बाद शहरियों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने फौरी इंसाफ और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया।
نصیرآباد کے علاقے مانجوٹی میں ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری زخمی. فائرنگ کے نتیجے میں متی اللہ عمرانی زخمی ہو گئے جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا. شہری نے کہا علاقے میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے باعث خوف و ہراس پھیل چکا ہے جبکہ تھانہ منگولی کی حدود جرائم پیشہ عناصر کے رحم و کرم پر ہے. عوام نے پولیس سے مؤثر کارروائی اور امن و امان کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے. قادر پور راہ میں پولیس نے کریک ڈاؤن کے دوران ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا. ڈولفن ٹیم نے تھانہ قادر پور راہ کے علاقے میں سنیپ چیکنگ کے دوران ایک مشکوک شخص کو روکا. تلاشی لینے پر ملزم احمد رضا کے قبضے سے 30 بور پستول اور گولیاں برآمد ہوئیں. گرفتار ملزم کو موقع پر تھانہ قادر پور راہ پولیس کے حوالے کیا گیا جبکہ مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اٹک اور مینیجنگ ڈائریکٹر سترا پنجاب ایجنسی انیل سعید نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی اور علائشوں کے بروقت تلفی کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے گئے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اٹک انیل سعید نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق ضلع بھر میں صفائی آپریشن کے لیے 3234 ورکرز اور 673 چھوٹی بڑی مشینری تعینات کی جا رہی ہے. شہریوں کی سہولت کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1139 اور ضلع اور تحصیل سطح پر کنٹرول رومز بھی قائم کر دیے گئے. خیرپور میں آئی بی اے پاس 1200 اساتذہ نے تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاجی دھرنا دے دیا. مظاہرین نے کہا وہ گزشتہ 11 ماہ سے باقاعدہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں لیکن ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ڈی آر سی پر دستخط نہ ہونے کے باعث تنخواہیں جاری نہیں کی جا رہی. ناظرین، سرگودا میں جدید لیزر سرجری کے فروغ کے لیے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال میں خصوصی ہینڈز آن ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ورکشاپ کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر محمد وارث فاروقہ اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر خواجہ محمد سہیل نے کی. ماہرین نے جدید لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے بواسیر اور ویریکوز وینز اور دیگر امراض کے جدید علاج کا عملی مظاہرہ کیا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.